Good evening, students. My name is Rahul Saraswat. I'm working as assistant professor in Mechanical Engineering Department, Engineering College, Bikaner. So, in continuation with the lectures of computer integrated manufacturing systems, today we will learn about the flexible manufacturing system. So, this is the lecture number 5. The mode of teaching or learning is Hindi and English both, so that each and everyone can understand the flexible manufacturing system. So first of all, the introduction about the flexible manufacturing system. So globalization, flaking market requirement and the modern lifestyle trends have put up tremendous challenge to manufacturing industries. होता क्या था, पुराने दिनों में जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो मैन्युफैक्चरिंग इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी. चीज़ें बहुत ही कन्वेंशनल अप्रोच होती थी, चीज़ें बहुत सिंपल बनती थी. लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज हुई, तो जो रिक्वायरमेंट चेंज होने की रेट है वो काफ़ी तेज़ होने लगी. और नए लाइफस्टाइल के हिसाब से जो नए प्रोडक्ट्स बने वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुए. वो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से नए नए चेंजेस आए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी उस हिसाब से, मतलब प्रोडक्ट के चेंज के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा. सो इन द करेंट बिजनेस सिनेरियो, द कम्पिटिटिवनेस ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज is determined by its ability to respond quick change in market and to produce high quality products at low cost. So in a present scenario, so what is the condition of the market means, अब हम अगर कोई चीज़ मार्केट से बाहर लेने जाते हैं तो हमारी दो चीज़ें होती हैं. एक, उसकी कॉस्ट कम हो, दूसरा उसकी क्वालिटी अच्छी हो. तो एक मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जिनमें आपस में ये कंपटीशन है कि हम अपने कस्टमर को लो कॉस्ट पर हाई क्वालिटी कैसे दें, और उस चीज़ के लिए क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज हम अपनाएंगे. तो ये जो है सब, ये किसके लिए हो रहा है? प्रोडक्ट को लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी बनाने के लिए. In the middle of the 1960s, market competition became more intense. During 1960 to 1917, cost was the primary concern. Later, quality became a priority. As the market became more and more complex, speed of delivery became something customer also needed. So this is all about the history of manufacturing. So this is basically the need. Why do we need a flexible manufacturing system? What does the meaning of the flexible? First of all, what is manufacturing? Manufacturing is simply to convert a raw material into a finished good. So what is the term is flexible? So first of all, we will learn about the definition of flexible manufacturing system. So what is flexible manufacturing system first? So first of all, FMS is a manufacturing technology. It's a kind of a technology. Secondly, FMS is a philosophy. Philosophy means the system is the keyword. FMS incorporates a system view of manufacturing. The buzzword for today's manufacturer is agility. An agile manufacturer is one who is the fastest to the market, operates with the lowest total cost, and has the greatest ability to delight its customer. So FMS is simply one way that manufacturers are able to achieve this agility. So what is FMS? What is flexible manufacturing system? So it is based on, it is a system. So what is system? In which the सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में क्या होता है? जिसमें कई सारे पैरामीटर एक साथ लिंक्ड होते हैं, है ना. कई सारे लिंक्स होते हैं, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो एक साथ लिंक्ड होते हैं और उससे हमें पैरामीटर से एक सिंगल आउटपुट मिलता है. मींस कई सारे पैरामीटर एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं
और जब हम उसको इनपुट देते हैं तो फॉर अ सिंगल इनपुट वी विल गेट अ सिंगल आउटपुट, सो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। अब एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जैसे जैसे सपोज अगर हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग हमें बनानी है तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक मशीन चाहिए, मशीन के लिए एक लोडिंग के लिए अलग अरेंजमेंट्स चाहिए, स्टोरेज के लिए अरेंजमेंट चाहिए, अनलोडिंग के लिए अलग अरेंजमेंट चाहिए। तो ये सारे जो हैं चीज़ें, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, मशीनिंग सिस्टम, तो ये क्या है, मशीनिंग मशीन, तो ये क्या है, ये चारों एक दूसरे के से क्या हों, इंटरकनेक्टेड हों। जब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी तब वो क्या फॉर्म करेंगी, वो एक सिस्टम फॉर्म करेंगी और उस सिस्टम फॉर्म करेंगे। क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहलाएगा। और अगर हम इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फ्लेक्सिबल बना देते हैं देन इसको हम क्या बोलेंगे, एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सो सो इसमें एक एजाइल मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो क्या करता है कि वो जो कॉस्ट है उसको लोएस्ट करके कस्टमर को डिलाइट करे और उसको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। So now we will move on flexibility. What is basically what the flexibility is? So flexibility is an attribute that allows a mixed model manufacturing system to cope up with a certain level of variations in part or product style without having any interruption in production due to changeover between the model. So we have a three type of flexibility. So we have a basic flexibility, we have a system flexibility, we have a aggregate flexibility. When we will add these three flexibility, we will get a simple word of flexibility. So flexibility contain basic flexibility, system flexibility, and aggregate flexibility. So what is basic flexibilities? So in basic flexibilities we have machine flexibility. मशीन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मशीन कैसे फ्लेक्सिबल होगा, द ईज विद विच अ मशीन कैन प्रोसेस वेरियस ऑपरेशन, मतलब कितनी आसानी से एक मशीन कई सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है। अगर जितना ज़्यादा वो आसानी से उस कई सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी। सो इन बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी वी हैव अ मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। देन मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, we all know that in a manufacturing system we have a material handling system, so we must have a material handling flexibility in the industry. So it is a measure of the ease with which different part types can be transported and properly positioned at the various machine tools in a system. सो मटेरियल हैंडलिंग का काम क्या है, हमारे पास बहुत सारी मशीन है, हमारे पास मशीनिंग सेंटर्स हैं, वर्क स्टेशंस हैं, और हर एक वर्क स्टेशन मशीनिंग सेंटर्स के लिए मशीन्स में क्या है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। और हम अपने मटेरियल को एक पर्टिकुलर मशीन पर सही टाइम पे प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब मशीन में क्या है कि मशीन ऑफ ना रहे, मतलब वो रन करती रहे, यूटिलाइजेशन जो है मशीन का वो प्रॉपर रहे, उसका जो यूटिलाइजेशन टाइम है वो सही रहे, मतलब मशीन कभी भी बीच में रुके नहीं। तो उसके लिए क्या है, हमें प्रॉपर हर एक मशीन पे, मशीनिंग सेंटर पे क्या है, मटेरियल टाइम टू टाइम पहुंचवाना है, ट्रांसपोर्ट कराना है, पोजीशन कराना है। तो ये सब क्या है, ये किस में आता है, मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। सो व्हाट इज ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, अ मेजर ऑफ ईज, है ना, अ मेजर ऑफ ईज with which alternative operation sequences can be used for processing a part type. So what is operation flexibility? Suppose operation flexibility क्या है, हमारे पास मशीन है, ठीक है, सपोज वी हैव, हमें एक जॉब बनाना है, एक पार्ट बनाना है, उस पार्ट में क्या है, सबसे पहले हमें टर्निंग ऑपरेशन करना है, देन वी हैव टू ड्रिल इन इट, है ना, विद द हेल्प ऑफ लेथ मशीन। सपोज इट्स अ एग्जांपल, हमें क्या करना है, पहले टर्न करना है, टर्न करने के बाद क्या करना है, हमें उसमें थ्रेडिंग करनी है। तो टर्न करने के बाद थ्रेडिंग करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्निंग करेंगे। तो टर्निंग के लिए हमें अलग टूल की रिक्वायरमेंट होगी और थ्रेडिंग के लिए हमें अलग टूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि अगर हम टर्निंग कर रहे हैं तो टर्निंग करने के बाद जब तुरंत थ्रेडिंग का
या ड्रिलिंग का चांस आता है या नंबर आता है, तो हम क्या है कि जो ये दोनों ऑपरेशन, इन दोनों ऑपरेशन के बीच में जो टाइम है वो कम से कम हो, जिससे कि क्या है तुरंत टर्निंग से क्या हो, थ्रेडिंग हो या ड्रिलिंग हो, तो वो तुरंत सेकंड दूसरा जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाए। ये हम जितना जल्दी कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा ईज होगी, उतना ज़्यादा सिस्टम जो है अपना ऑपरेशन सिस्टम जो है वो उतना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनेगा। तो बेसिक फ्लेक्सिबिलिटीज़ में क्या है, तीन चीज़ें आती हैं: मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड द ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। In the next, the system flexibility. So in the system flexibility, we have a volume flexibility. So a measure of a system's capability to be operated profitably at a different volume of the existing part type. So in a volume flexibility, there must be flexibility of the volume of the parts or product which are going to be manufactured in the particular industry. So it is a volume flexibility. What is routing flexibility? So routing flexibility, a measure of the alternative path that a part can effectively follows through a system for a given process plan. So हमने पहले ही बना था कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में क्या होता है, वी हैव अ पर्टिकुलर रूट टू मेक अ प्रोडक्ट। तो वो एक जो रूट है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का कि हम पहले ये करेंगे, उसके बाद जो एक पूरी प्लानिंग है उसी रूट के हिसाब से हमारे जो चीज़ें हैं, हमारे जो काम हैं, हमारे जो वर्क जितने भी हैं वर्क स्टेशन में वो फॉलो हो रहे हैं, तो उतना ही ज़्यादा सिस्टम क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और ये आएगा रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में। नेक्स्ट इज प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, अ मेजर ऑफ द वॉल्यूम of the set of the part types that a system can produce without incurring any setup. Next is the product flexibility. So what is product flexibility? The volume of the set of part types that can be manufactured in a system with minor setup. So this is all about the system flexibility, which contain the volume flexibility, routing flexibility, process flexibility, and the product flexibility. Next is the aggregate flexibilities. So what is aggregate flexibilities? First of all, is in aggregate flexibility there is a program flexibility, the ability of a system to run for reasonably long period without external intervention. So what is program flexibility? Suppose we have a program to manufacture a part or a product for a long time. Suppose we have to manufacture a number of products, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो हमें अपने सिस्टम को बहुत लंबे टाइम के लिए रन करना है। तो जो हमारा सिस्टम है वो कितना आराम से कितने लंबे टाइम के लिए रन कर सकता है, वो आता है किसमें, प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी में, विदाउट एनी external intervention. So this is a program flexibility. Next is production flexibility. So what is production flexibility? The volume of the set of part types that a system can produce without major investment in capital equipment. So what is production flexibility? So it is the volume of the set of part types that a system can produce without major investment in capital equipment. क्या होता है जब हम किसी इंडस्ट्री को बनाते हैं या फिर हमें कोई एक नया प्रोडक्ट बनाना होता है, तो हमें नई मशीन्स की और नई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी में ये है कि कितना हम नया से नया इन्वेस्टमेंट न करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है प्रोडक्ट है हमारा, वो आउटपुट जो है हमारा आए। बेसिकली मतलब हम कितना से कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना प्रोडक्ट है उसको वो मैन्युफैक्चर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉफिट है वो गेन कर सकें। तो इसमें ये किसमें आता है प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी में। नेक्स्ट इज द मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी. So what is market flexibility? The ability of a system to efficiently adapt the changing market condition. So what is market flexibility? Market flexibility का मतलब ये है कि कोई भी जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है जो मार्केट में चेंज हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सके। सपोज कैसे, अभी जो फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आ रहे हैं किसमें,
वो चेंजेस आ रहे हैं स्मार्टफोन्स में। स्मार्टफोन में डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है, और डेली मार्केट की कंडीशन के हिसाब से जो स्मार्टफोन है वो चेंज आ रहे हैं। तो जहाँ ना स्मार्टफोन बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंडस्ट्रीज़ कितनी जल्दी कोप अप कर सकती हैं मार्केट की कंडीशन के साथ, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी। इसी तरह जो कार्स हैं, बाइक्स हैं, इनमें जितने जो फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, या फिर हम बात करें जो हम फैब्रिक हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, उनमें कितनी जल्दी फैशन के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, और जो फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरह से कोप अप करती हैं फैशन में चेंजेस के हिसाब से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी. So basically the aggregate flexibility, the system flexibility and the basic flexibility, these all are sum up to make a main flexibility which incorporate in flexible in a manufacturing system, so that we will get a flexible manufacturing system. In the next lecture we will discuss about the type of FMS in the lecture number 6. So thank you.